Hello students, in the last class we were talking about the first cervical vertebrae. In continuation with the topic, we'll study about the attachments and relation of the first cervical vertebrae. So this is the first cervical vertebrae, it's also known as atlas. इसका कोई बॉडी नहीं होता है, neither it has got a spine, ठीक है. इसके एंटीरियर आर्च होते हैं, पोस्टीरियर आर्च होते हैं, एंटीरियर ट्यूबरकल होता है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता है और ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जिसमें foramen transverse area present होता है. Okay, and now we will study about the attachments. So here is a mnemonic to it. Alvin elevated himself on the long scale to reach out the new special atlas. So the green ones are the ligaments and the red ones are the muscles. So Alvin, it's a ligament, anterior longitudinal लिगामेंट. एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंटीरियर ट्यूबरकल पे. ये एंटीरियर ट्यूबरकल है. एंटीरियर ट्यूबरकल पे कौन सा लिगामेंट होगा? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. ठीक है. उसके बाद है लेवेटर स्कैपुली. लेवेटर स्कैपुली कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस पे. देखो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, दिस वन इज ट्रांसवर्स प्रोसेस और यहाँ पे मार्क्ड है लेवेटर स्कैपुली. ठीक है. And then there is oblique part of longus colli. Where it is present? It's present on the anterior tubercle. यहाँ पे present होगा anterior tubercle पे. ठीक है. इसके inner part पे present होगा, posterior part पे. And then there is scalenus medius. ये transverse process पे present है, scalenus medius. उसके बाद है rectus capitis posterior minor, rectus capitis lateralis. ये rectus capitis posterior minor is present on posterior tubercle. posterior tubercle, this is posterior tubercle. यहाँ पे present होगा. ये देखो ये marked है rectus capitis posterior minor. Okay, and then there is rectus capitis lateralis, superior oblique, inferior oblique. ये तीनों muscles transverse process पे present है. This is transverse process. Transverse process पे superior oblique, levator scapulae, rectus capitis lateralis. ये तीनों कहाँ पे present है? ये तीनों present है transverse process पे. ये rectus capitis anterior, ये कहाँ present है? ये lateral mass. ये वाला part क्या है? ये lateral mass है. This one is lateral mass. यहाँ पे lateral mass है. ठीक है. ये superior facet है, articular facet. उसके पीछे जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके पीछे होगा inferior articular facet या posterior articular facet. ठीक है. And then we have superior oblique, inferior oblique. ये भी transverse process पे present है. ligamentum nuchae या nuchae nuchae, ये कहाँ present है? posterior tubercle पे. And then we have splenus cervicis, ये भी transverse process पे present है. And then we have anterior atlanto-occipital membrane. This is a membrane. Posterior atlanto-occipital membrane. ये membrane है. Anterior atlanto-occipital membrane कहाँ present होगा? Anterior arch के upper border पे. ये जो upper border है anterior tubercle का, ये upper border है. Anterior arch है ना, इसके upper border पे क्या present है? एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन. ऑसिपिटल मेम्ब्रेन क्योंकि यहाँ पे ये जाके कहाँ अटैच होता है? ऑसिपिटल बोन से. ऑसिपिटल बोन के बैसिलर पार्ट से कॉन्डाइल होता है वहाँ पे. और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल किससे अटैच होगा? पोस्टीरियर ट्यूबरकल के नीचे कौन सा मेम्ब्रेन है? पोस्टीरियर ट्यूबरकल के नीचे तो इसका ये होगा, ये एक्सिस है, सॉरी ये एटलस है, इसके नीचे एक्सिस होगा तो एक्सिस अटैच्ड है. पर इसके ऊपर वाला पार्ट किससे अटैच होगा? ऑसिपिटल, पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन से. क्योंकि ये इस प्लेन में होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं होता, ये लंबाई में नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है. तो ये पूरा पार्ट किससे अटैच होगा? ऐसे. ऊपर की तरफ कौन है? कॉन्डाइल है. कॉन्डाइल किसका? ऑसिपिटल बोन का. और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे कौन सा बोन है? इसके नीचे है एक्सिस, C2 वर्टिब्रा. ओके. देन देयर इज लिगामेंटम फ्लेवा. लिगामेंटम फ्लेवा कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर आर्च. लोअर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर
आर्च पे प्रेजेंट होता है। ये पोस्टीरियर आर्च है इसके लोअर बॉर्डर पे, मतलब इसके नीचे, ये जो पार्ट दिख नहीं रहा है इसके नीचे। एंड देन देयर इज ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस कहाँ प्रेजेंट है? ट्यूबरकल ऑन द मीडियल साइड ऑफ लेटरल मास। ये वाला पार्ट लेटरल मास है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से ये वाला, ये कौन सा फोरामेन? वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ट्यूबरकल है, यहाँ एक ट्यूबरकल, ये दोनों ट्यूबरकल इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट C1 vertebra that is known as atlas, and now we'll study about C2 vertebra that is known as axis. C2 vertebra is also known as axis. What is the identification of this? इसमें एक ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, या उसको हम लोग डेंस भी बोलते हैं। इट इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेंस और ओडोंटॉइड प्रोसेस। यू सी हियर, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस है, C2 वर्टिब्रा है ये जो ये डेंस है, ये एक पॉइंटेड एलिवेटेड एरिया प्रोजेक्शन है जो कि कहाँ जाके आर्टिकुलेट करता है? ये आर्टिकुलेट करता है C1 में, ठीक है। I had shown you earlier. I'll show you. Wait for a second. ये वाला पार्ट डेंस कहाँ जाके आर्टिकुलेट करता है? आर्टिकुलर फेसेट फॉर डेंस। C1 के इस आर्टिकुलर फेसेट में जाके ये आर्टिकुलेट करता है। सी है, ये लिगामेंट है, लिगामेंटम। दिस इज ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। और यहाँ ये जो स्पेस है, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है ना, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जा करके डेंस आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकुलर फेसेट होता है। सो दिस डायग्राम, ये वाला फर्स्ट C1 है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रे C1 एटलस है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे क्या है? C2 है। C2 का ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस कहाँ जाके आर्टिकुलेट करता है? एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस में जाके आर्टिकुलेट करता है। ये यहाँ पे लिगामेंट है, what is odontoid process or dense? It is strong tooth-like process projecting upwards from the body. ये एक strong tooth-like process है, ये tooth-like process है ना, this one is tooth-like process जो कि body से, इसके body से project होता है, कहाँ? upward, ठीक है। It is strong tooth-like process projecting upward from the body. The dens is usually believed to represent the centrum or the body of the atlas which has fused with the centrum of the axis. तो ये डेंस किससे जाके आर्टिकुलेट होता है? ये एक्सिस का है पार्ट, तो ये जाके एटलस से आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। दिस इज द थिंग। द डेंस इज यूजुअली believed to represent the centrum or body of the atlas which has fused to the centrum of the axis. ये जाके फ्यूज हो रहा है ना, ये एक्सिस से, ये जो एक्सिस है, ये पूरा एक्सिस है, इसका डेंस जाके किससे फ्यूज हो रहा है? एटलस से जाके फ्यूज हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ द बॉडी एंड द डेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बॉडी और डेंस के बारे में पढ़ेंगे। द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द बॉडी इज फ्यूज विद द डेंस and is encouraged upon one side, on each side by superior articular facet. See, ये डेंस है, बीच में डेंस है, बॉडी के बीच में डेंस है यहाँ पे, ठीक है। और अगल बगल क्या है दोनों के? फेसेट है, फेसेट फॉर एटलस, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है। यहाँ पे कौन जॉइंट होता है? एटलस जॉइन होता है, ठीक है। The dens articulates anteriorly with the anterior arch of the atlas. Dens किससे जाके articulate होता है? Anteriorly, anterior arch of the atlas से, और posteriorly with the transverse ligament of the atlas. ये देखो, anteriorly क्या है? Anteriorly है atlas का anterior arch, और posteriorly क्या है? Ligament है, ठीक है।
वही है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलस एंड एंटीरियर लीवा एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस. नाउ विल स्टडी अबाउट वर्टिब्रल आर्च. ये वर्टिब्रल आर्च है, ये वर्टिब्रल आर्च है, ठीक है. इसमें भी पेडिकल्स होते हैं आगे और पीछे, लैमिना होता है, ठीक है. पेडिकल में क्या है आगे, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है. ये सुपीरियर, ये फेसेट जो है ये ऊपर में जो है उसको हम सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट बोलेंगे, और जो पीछे होगा इसके उसको हम लोग इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट बोलेंगे, ठीक है. और वर्टिब्रल नॉच होगा वहाँ पे, ये देखो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट सुपीरियर होगा और इंफीरियर में क्या होगा, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या वर्टिब्रल नॉच होगा. और इसका लैमिना, ये तो पेडिकल्स थे, पेडिकल के बाद यहाँ पे लैमिना होता है. लैमिना कैसा होता है, थिक और स्ट्रॉन्ग होता है, मोटा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे आर्टिकुलर फेसेट्स के बारे में. सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट कहाँ पे होता है, ऊपर में होता है ना, अपर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड पेडिकल. अपर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड पेडिकल, यहाँ पे पेडिकल है, ठीक है. और ये किससे आर्टिकुलेट करता है, इट आर्टिकुलेट्स विद द इंफीरियर फेसेट ऑफ एटलस वर्टिब्रा टू फॉर्म द एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है. ये किससे जाके आर्टिकुलेट करता है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एटलस है, तो एटलस का कौन सा पार्ट होगा, इंफीरियर पार्ट होगा. एटलस का इंफीरियर पार्ट होगा, क्योंकि ऊपर तो उसके एटलस के ऊपर क्या ऑसिपिटल बोन है, तो एटलस के नीचे वाला पार्ट इससे जाके, एटलस का नीचे वाला पार्ट इससे जाके आर्टिकुलेट करेगा. तो कौन सा पार्ट एटलस का आर्टिकुलेट करता है, इंफीरियर फेसेट ऑफ द एटलस वर्टिब्रे, ठीक है. सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ द एक्सिस आर्टिकुलेट्स विद द इंफीरियर फेसेट ऑफ द एटलस वर्टिब्रे टू फॉर्म द एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है. अब इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट लाइज पोस्टीरियर, पीछे होगा, सुपीरियर के पीछे होगा ना इंफीरियर, आर्टिकुलेट्स विद द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है. ये जो ये ऊपर है, ये बॉडी ऊपर का पार्ट है, ठीक है. ये एज्यूम दैट दिस इज C2, ठीक है. तो C2 के ऊपर क्या है, C1 है, तो ऊपर C1 होगा, नीचे C3 होगा. तो वही लिखा है कि इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट लाइज पोस्टीरियर आर्टिकुलेट्स विद द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे से आर्टिकुलेट करेगा. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस के बारे में. देखो यहाँ ट्रांसवर्स प्रोसेस बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, एंड हैज ट्रू पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स ओनली, एंड हैज ट्रू पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स ओनली. यहाँ पे देखो ये जो ट्यूबरकल है ये बस पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, एंटीरियर ट्यूबरकल प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है. वेरी स्मॉल, हैज ट्रू पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स ओनली, ठीक है. अब स्पाइन, स्पाइन देखो इसका स्पाइन कैसा है, लार्ज है, थिक है, मोटा है, वेरी स्ट्रॉन्ग और बाइफिड भी है, जैसे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे का था वैसा ही है, क्योंकि ये बाइफिड है, ठीक है. एंड टर्मिनेटिंग इनटू टू रफ ट्यूबरकल्स, टर्मिनेटिंग इनटू टू रफ ट्यूबरकल्स. ट्यूबरकल्स है ना दो, ट्यूबरकल क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, राउंडेड प्रोट्यूबरेंस होता है, ये देखो राउंडेड है. तो लार्ज, थिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, टिप्स बाइफिड होता है, टर्मिनेटिंग इनटू टू लार्ज ट्यूबरकल्स, ठीक है. हमने पढ़ा था कि एटलस जो है C1 उसमें कैसा होता है, उसमें स्पाइनल ये नहीं होता है, स्पाइन प्रेजेंट नहीं होता है, स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. अब हम लोग इसके अटैचमेंट्स के बारे में विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.